Good morning, students. Welcome to English class. How are you all? Hope you all are well and safe at your home. So, students, yesterday we had done chapter 9 from your book New Pathways. I think we have done this chapter up to page number 127. Okay, so today we will continue from page number 128. So let's start. Tell me some more, said the doctor excitedly. He quickly ran over to the dresser drawer and came back with a book and a pencil. डॉक्टर ने एक्साइटेड होकर कहा, मुझे कुछ और भी बताओ। वह जल्दी से भागकर गया ड्रेसर ड्रॉर में और एक बुक और पेंसिल लेकर आया। Now don't go too fast and I will write it down. This is interesting, very interesting, something quite new. Give me the words ABC first slowly now. अब डॉक्टर ने कहा, आप तेज़ी से नहीं बताओगे क्योंकि मैं इसे लिखूँगा। यह इंटरेस्टिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग है और कुछ नया भी है। अब धीरे धीरे बताओ मुझे बर्ड्स की ABC के बारे में। So that was the way the doctor came to know that animals had a language of their own and could talk to one another. इस तरह से डॉक्टर को ये पता चला कि एनिमल्स की भी एक लैंग्वेज होती है और जिससे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। And all that afternoon while it was raining, Polynesia sat on the kitchen table patiently giving him bird words to put down in the book. और उस दोपहर जब बारिश हो रही थी तो पॉलिनेशिया ने किचन टेबल पर बैठकर पेशेंटली डॉक्टर को बुक में लिखने के लिए बर्ड के वर्ड्स बताए। ठीक है। At tea time when the dog Zip came in, the parrot said to the doctor, "See, he is talking to you." चाय के टाइम पे जिप जो कि डॉग है वो अंदर आया। पैरट ने डॉक्टर से कहा, देखो वो तुमसे बात कर रहा है। Looks to me as though he were scratching his ear, said the doctor. डॉक्टर ने कहा कि वो मुझे देखते हुए अपने ईयर्स को क्या कर रहा है, स्क्रैच कर रहा है। But animals don't speak with other mouths, said the parrot in a high voice, raising her eyebrows. They talk with their ears, with their feet, with their tails, with everything. So, beta, there is a conversation between the parrot, Polynesia, and Dr. Dolittle. Okay, Polynesia is telling something about animals to Dr. Dolittle. Polynesia किसके बारे में बता रहे हैं Dr. Dolittle को? कुछ animals के बारे में। Okay. But animals don't always speak with their mouths, said the parrot in a high voice, raising her eyebrows. पैरट ने अपनी आवाज़ को ऊंची करके यानी अपनी आईब्रोज को थोड़ा ऊपर उठा के डॉक्टर से कहा कि लेकिन एनिमल्स जो है वो हमेशा अपने मुंह से बात नहीं कर सकते। दे टॉक विद देयर ईयर्स, विद देयर फीट, विद देयर टेल्स, विद एवरीथिंग। वे अपने कानों से, पैरों से, अपनी पूंछ से यानी वे अपनी बॉडी के हर पार्ट से बात कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं। Sometimes they don't want to make a noise. Do you see now the way he is twitching up one side of his nose? कभी कभी वो शोर नहीं करना चाहते। क्या तुमने अब देखा कि कैसे वो अपनी नोज़ को एक साइड से ट्विच कर रहा है? डॉग जो है वो कैसे अपनी नोज़ को एक साइड से ट्विच कर रहा है और ऊपर नीचे कर रहा है। What does that mean? asked the doctor. डॉक्टर ने पूछा, इसका मतलब क्या है? That means can't you see that it has stopped raining? Clearly he wants you to take him out for walk. इसका मतलब है कि क्या तुम नहीं देख सकते हो कि बारिश बंद हो चुकी है और ये क्लियर है कि वो चाहता है कि तुम उसे वॉक के लिए बाहर लेकर जाओ। Polynesia answered. Polynesia ने आंसर दिया, he is asking you a question. Dogs nearly always use their noses for asking questions.
पॉलिनेशिया ने कहा वो तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। डॉग्स ज़्यादातर जब भी कोई क्वेश्चन आस्क करते हैं तो वो कैसे करते हैं, वो अपनी नोज़ का यूज़ करके कुछ भी आस्क करते हैं, ठीक है। After a while, with the parrot's help, the doctor got to learn the language of the animals so well that he could talk to them himself and understand everything they said. थोड़ी देर बाद पैरट की हेल्प से डॉक्टर ने एनिमल्स की लैंग्वेज को समझ लिया था, सीख लिया था। Polynesia brought her sick friends and the doctor began to treat their illness. इतने अच्छे से उन्होंने सीख लिया था कि वो खुद से अब एनिमल से बातें कर सकते थे। कौन कर सकते थे? डॉक्टर जॉन डॉलिटल हैं जो वो अब खुद से एनिमल से बातें कर सकते थे। उन्होंने अब अच्छे से उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लिया था और जो कुछ भी एनिमल्स बोलते डॉक्टर उन्हें समझ जाते थे ईजीली। Polynesia brought her sick friends and the doctor began to treat their illness. Polynesia अपने बीमार फ्रेंड्स को वहाँ लाने लगा डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने उनकी बीमारियों का इलाज करना शुरू किया। One day a farmer brought his old plough horse to the doctor. The poor horse was very glad to find a man who could talk in horse language. एक दिन एक किसान जो फार्मर है वो अपने ओल्ड प्लो हॉर्स को डॉक्टर के पास लेकर आता है, ठीक है। और वो बेचारा घोड़ा एक ऐसे व्यक्ति को पाकर बहुत खुश होता है। डॉक्टर जॉन लिटल के पास जाकर वो बहुत खुश होता है। हॉर्स वो जो कि हॉर्स की लैंग्वेज में बात कर सकते थे, क्योंकि डॉक्टर जॉन डॉलिटल जो है बेटा अब उनको एनिमल्स की लैंग्वेज स्पीक और अंडरस्टैंड करना आ गया था ना, तो अब वो इजीली हॉर्स की लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड कर पा रहे थे और ये देखकर हॉर्स जो है वो बहुत ही खुश होता है, ठीक है। So it's enough for today. Tomorrow we will continue from page 129. So thank you and have a nice day. Bye bye.